गुफ्तगू कर रही हैं। The Bengal Tigers are batting with all their might, and with me witnessing that interesting chase of score is Mr. Dev, who's the Member of Parliament and also an iconic player for the Bengal Tigers. Now, given the performance that we've had so far, what are your thoughts? I think champions have played like a champion. I think Rajiv has played like a brilliant player. I think he should be in Indian team right now. Yes. Yeah, we are fighting back, and I think our team also performed well, and they have given up a very decent performance, and we are very hopeful. Let's see. But do you think there is a chance that the Tigers can roar to the challenge now? I think that there's always a chance, like till the end, but you never know, in the game of cricket, anything is possible. But yeah, my guys are playing well, and I think they're batting quite decently. Let's hope for the best. But generally, for something like that, considering you all are actors as well, what kind of preparation goes into something of this magnitude? Very honestly, for people like us who are professionally actors, it's like a fun game. It's a platform where we get to meet so many other original actors and like stars, so-called. Exchange of ideas, exchange of so many things. For us, it's like that. But yeah, there are players who really play well. Like for them, it's like making century, hitting sixes and all. The way everyone's glued in and the amount of stress that's going around, very professional. I hardly see fun. This sounds like a real game. Actually, cricket in India is a religion. Anybody in India, they love to play cricket. Like in our case also, like in the middle of a shooting, we also play cricket. So, given an opportunity like this, so I think anybody for that matter would love to play cricket. And what do you think is different to being on the field? Is that the enthusiasm over there? They're cheering for the home team. This is amazing. But the crowd gets to see the realistic avatar of all these guys that they're so fond of and are fans of. Basically, they are here just because of the love. They love their actors. Whatever they do, they get bowled out in zero. No matter for them, they just want to see them so closely. Want to cheer for them, and I think this is the basic USP of this CCL. Thank you. We'll be cheering for you. I know you're going soon as well, so we'll let you go prep up. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Over to the commentary again. Thank you, Supreet. Always a delight to see you. But Kiribhai, this match is heading in one direction. That's besides the point. We're talking about the whole concept of CCL. I think it's wonderful for their fans to see the stars in another avatar. Bilkul. You see now, this gives an opportunity to all those, lovers of the game, to see these actors acting in a different manner onto the field. In the meantime, there has been a brilliant effort on the field. Wonderful, wonderful. When the team is defending 255, such efforts actually shows how everybody is committed. So after 11 over is 71 for 4. And as I was mentioning, Atul, this also gives an opportunity to these CCL cricketers to showcase. Well, we'll come back to this after this in the next over. It's end of 11 overs for 72 for 4. We are back live, 72 for 4 and 9 overs to go. And we are talking about this combination of cricket and entertainment. It gives us a chance and the fans to see all the film stars, people who see them on the celluloid and on the cricket ground trying their best. And Kiribhai, you also a legend in cricket, and you also had, tried your hand in acting. I have not tried my hand in acting. I must inform all these guys who have been saying you're also an actor, blah 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 blah. You see, now I have been offered as a coach to the heroes of these movies, who want to represent the country in the cricket field. Oh, in the meantime, that was a great collection behind. बहुत बढ़िया collection सुदीप का था पीछे से. मीडियम पेस को खड़े हुए ऊपर और बेल्स
फ्लैश में निकाला उन्होंने. Wow, he is totally involved. He is totally focused. Nevertheless, so this, so on those bases, as and when they offer, comes in, I accept it on a decent role. But you did play a baddie in one movie called Kavi Ajnabi The. हाँ, no, it's not that. कि पूरी खबर रखी है हमने गिरी भाई, आप कह हाँ रहे जी, हैं. हाँ जी, बिल्कुल. अभी वहाँ पे बैडी, I was not a baddie at all. I must inform that Shakti Kapoor was the main villain of that. अभी now I was kind of an underworld protecting the good guys. Protecting the good guys and eliminating bad guys. That was my job. So I was lured and misled by Shakti Kapoor. कि भाई, not knowing that I was a big fan of Sandeep. अच्छा. And he said, this fellow is a bad fellow, you have to break his legs. So I was misled. अभी now, अरे यार, हमारा चेहरा और फिल्म लाइन कहाँ से यार? मैं बोला, जब I love experiencing new things, and so on those grounds I accepted that. ओह, थर्ड मैन पे बॉल गया. पर आपको क्या लगता है गिरी भाई कि एक्टर्स के लिए क्रिकेट खेलना ज्यादा मुश्किल है कि क्रिकेटर्स के लिए एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल है? देखिए, एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल है. मेरा बिल्कुल विपरीत है इसके. मैं आपको बताऊंगा क्यों, पहले आप बताइए. नहीं, देखिए, टू प्रिटेंड. अब ये देखिए, ये आपके सामने जो पूरे अपने सैंडलवुड के हैं, यहाँ तक कि वो सैंडलवुड की महक आ रही है, और कितनी प्यारी महक आ रही है. बिल्कुल, आपने हमारी बात हम भूल गए. अच्छी चीज़ें भूलना नहीं चाहिए. और उनकी तारीफ करना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जेंटलमैन की निशानी है. पर मालिक ने कैसे कैसे चीज़ें बनाया है यार, उनको देखना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, और लुत्फ उठाना चाहिए. उनके लुत्फ उठाना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए जब मौका पड़ता है. तभी इतना अच्छा खेल रहा है. सपोर्ट जो है बुलडोजर्स की, एक से एक खूबसूरत चेहरे उनके सपोर्ट में है. यही जोश है. चलिए, 12 ओवर के बाद अब 77 पे 4. ठीक है. Yeah, okay. Yeah, okay. हाँ, ठीक है. क्या क्या करना है? इसकी इनिंग के चक्के दिखा रहे हो आप? हाँ, चलिए, ठीक है. हाँ. तो खूबसूरत रोशनी में डूबा हुआ ये चिन्ना स्वामी का मैदान, और ये है मैच समरी अब तक की. कर्नाटका 255, 6 विकेट पे. आप हैरान ना होइए, 111 रन राजीव ने आज बनाए हैं 33 गेंदों में. और आज ही के दिन एबी डिविलियर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 31 गेंदों में सेंचुरी लगा के वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच में. तो और उसके कुछ धमाके हम जरूर कोशिश करेंगे आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाएं जब तक मैं बात करता हूं सैयद किरमानी से. ये देखिए किस तरह से प्रदीप राजीव की बैटिंग. क्या बात है. ये खिलाड़ी जो है ना, किसी भी आईपीएल टीम में शामिल हो सकता है. जिस तरीके से इन्होंने टाइमिंग के साथ और आई कोऑर्डिनेशन इनका बहुत ही बढ़िया रहा है. यानी किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के बराबर है ये. और यही प्रूव करना चाहते हैं सीसीएल खिलाड़ी कि भाई हम भी कुछ कम नहीं है. और आप कह रहे थे कि शायद क्रिकेटर्स के लिए एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल है. मुझे लगता है कि सभी इंसान जो इस दुनिया में आए हैं कहीं ना कहीं एक्टिंग करते हैं अपनी जिंदगी में. तो एक्टिंग करना तो हर एक इंसान को नेचुरली आता है, पर खिलाड़ी बनना हर एक के बस की बात नहीं है. नहीं, एक्टिंग भी करना किसी के बस की बात नहीं हो सकती है. यहाँ पे फिर से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट हुआ है. दाद देनी चाहिए अपने कर्नाटका बुलडोजर्स की, जो जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कमिट किया है. इंटरनेशनल फील्डिंग लेवल के फील्डिंग हो रही है. चलिए, वो कोशिश की तो बात हम करेंगे ही, पर ये सबसे बड़ी बात मेरे लिहाज से ये है कि जब आप 255 का स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं और दूसरी टीम को 24 रन प्रति ओवर चाहिए, और उसके बावजूद आप ऐसी
एफर्ट करें, क्योंकि आप सोचते हैं मैच तो जीत ही जाएंगे, हम क्यों चांस लें इंजरी होने का। बिल्कुल, ये देखिए, ये लीडरशिप का सवाल होता है। यहाँ पे जो लीडर है सुदीप, किसी को छोड़ा नहीं है। अब उनके ज़बरदस्त कलेक्शन वहाँ पे सुदीप का, जबकि गेंद नीचे होते हुए रोल हो रही थी, उन्होंने बहुत ही टेक्निक के साथ, अच्छी टेक्निक है उनकी, विकेट कीपिंग टेक्निक है एक्चुअली। एकदम कड़क कप्तान है वो, और पकड़ ली कैच, कैच पकड़ ली है, और जोरदार अपील के ये साथ। तो अपील करेंगे ही करेंगे, और मुझे लगता है आउट है। बिग देखिए आप जिस तरीके से सुदीप इतना ने, बड़ा बिगेस्ट निक बोला है उन्होंने। माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, और होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़े ऐसे स्निक्स हो जाते हैं कि अंपायर को भी सुने नहीं आता है दर्शकों की गड़बड़ में। और ये तो बिल्कुल ही बैट का इतना मोटा है जय, यहाँ तक कॉन्ट्री बॉक्स तक पता लगा। देखिए डिफ्लेक्शन, ये देखिए, अब स्निकोमीटर नहीं है तो कहना बहुत मुश्किल है, पर आप रिएक्शन देखिए गेंदबाज और विकेट कीपर का, तो ये साफ बताता है। कई बार छोटे छोटे इंडिकेटर्स रहते हैं आप कि एज होता है कि नहीं होता, इस से तो पता नहीं लगेगा एम्पायर को। ये जो लड़का है ना, जो आपकी स्क्रीन में जो गोरा सा, सबसे हाँ, गोरा, सैंडलवुड का ध्रुव, हाँ। ध्रुव उसका नाम है। हाँ। ये जब मैंने 1-2 साल मेरी पर्सनल प्राइवेट एकेडमी मैंने चलाई, जस्ट टू तजुर्बा करने के लिए कि भाई सारे टेस्ट खिलाड़ी अपने अपने एकेडमीज, अपने अपने कोचिंग क्लिनिक्स शुरू कर दिए थे। तो मैं भी वो सोचा कि भाई मैं भी तजुर्बा करूं, अपनी एक एकेडमी, पर्सनल एकेडमी खोल कर। तो उस एकेडमी में अंडर 12 का टूर्नामेंट मेरी एकेडमी से शुरुआत हुआ। तो उस एकेडमी में ये था ध्रुव, ये था, और मुझे मालूम नहीं था कि और भी स्टेट लेवल के खिलाड़ी जो अब आईपीएल खेल रहे हैं वो भी मेरी एकेडमी में थे। वो जब सेलेक्ट हुए स्टेट, तो नॉट आउट दे दिया है, और सुदीप के चेहरे वो देखिए कि ऐसा लगता है विकेट चुरा ली गई उनसे। चलिए 13 ओवर के बाद 81 में 4। तो चलिए अब 7 ओवर का खेल बचा है, और वाह बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया ट्राई। देखिए बाउंड्री पे कैच नहीं हो पाया, पैरेलल 6 पर एफर्ट की कोई कमी नहीं है, और सुदीप अभी भी चल रहे हैं पार के साथ। ओहो, ओ यही मैं बात कर रहा हूं। देखिए अब बैटिंग टीम को चाहिए 24 रन प्रति ओवर, एक छक्का पड़ गया और पूरी क्लास लगा दी अपने गेंदबाज की। बिल्कुल, यही देखिए, इसी को कहते हैं टोटल इन्वॉल्वमेंट और प्रोफेशनलिज्म। अभी कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, अपने जितना भी स्कोर किया है अपने, विच इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है अपोजिशन बंगाल टाइगर्स के लिए 256 चेस करना। तो मैं समझता हूँ कुछ किस्म की कॉम्प्लेसेंसी आ सकती है, मगर नहीं आई है। 256 तो छोड़िए, मुझे 156 का भी टारगेट अगर बने तब भी बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए ट्विटर, अब अगर आप फॉलो करना चाहें सीसीएल को, @CCL हमारा टैग है। तो गिरी भाई, आपके पास आपका ट्विटर अकाउंट आपका तैयार है? मेरे को देखिए, मैं उस ज़माने का हूँ जहाँ पे न ट्विटर, न वाइबर, न स्काइप, ये सब नए नए नाम मुझे जो सामने आते हैं। फिर से देखिए आप, सैंडलवुड की महक जो आप लोग तक के पहुँचती होएगी।
तो ये कह रहा था कि मैं कि ट्विटर ये सब टेक्नोलॉजी मेरे लिए तो एक इट्स लाइक लैटिन बोलते हैं ना। नहीं, पर मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं खेल के बारे में। और पुराने जो हम आपके बारे में सुन सुन के बड़े हुए हैं, पर हमारे आपसे भी पहले सोचिए, जब एशेज की सीरीज में 3-3 महीने जहाज पे बैठ के जाते थे, और 3 महीने जहाज में, और 3 महीने का 4 महीने का टूर, और फिर 3 महीने वापस, तो 1 साल गया एक सीरीज में। और कबूतर से चिट्ठी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। अब हर कोई पूछता कि भाई भाई यू शुड बी ऑन क्या बोलते हैं वो फेसबुक पे। मैं बोला यार मेरे पास फेस ही नहीं है तो बुक कहाँ से मिलेगी मेरे को। तो ये सब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मेरे एसएमएसेस देखने के लिए, और मैं कहाँ व्हाट्सएप पे जाऊँ और ट्विटर पे जाऊँ और वाइबर पे जाऊँ इस किस्म की। यार मुझे भी ज़रा थोड़ी सी चाय की ख्वाहिश हो रही है वहाँ देखते हुए। चलिए, अब आखिरी दौर पे है ये मैच। फेसबुक की बात की आपने, facebook.com/CCL पे सारी बैक ऑफ द सीन जो कहानियां हैं सीसीएल की खिलाड़ियों के बारे में, फोटोग्राफ्स सब आप देख सकते हैं। तो चलिए, 14 ओवर इसी बात में समाप्त हुए। 95 माफ कीजिए, 4 विकेट डाउन बंगाल टाइगर्स। Well, I've been hearing your comments, good comments, very pertinent comments. देखिए, अगर मुकाबला किया 14 ओवर के बाद, कर्नाटका बुलडोजर का स्कोर था 140 पे 4। हालांकि डिफरेंस ज्यादा देखें तो सिर्फ 45 रन का है इस समय, और जो कि 2 ओवर में पूरा हो सकता। पर इसी दौर के बाद जो राजीव ने स्पीड पकड़ी थी, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आखिरी 6 ओवर में 110 रन बनाए हैं। बिल्कुल, इट वाज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा हाथ में, वैसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे। ओ देखिए, वो अपने बॉलर ने अपनी वर्जिश शुरू कर दी जैसे ही फील्डर ने। बड़ी सीधी सादी कैच रही वो, और बॉलर ने अपने उठक बैठक की एक्सरसाइज वहाँ पे करने लग गए। बहुत ही अच्छा भी लगा। चलिए, 1-2 शॉट अच्छे लगाए, पर पूरा वो दम आ नहीं पाया यूसुफ की शॉट में। अभिमन्यु ने बहुत बढ़िया कैच लिया, और राहुल की पहली विकेट। ये देखिए, ये भी अच्छा नया तरीका ढूंढा है सेलिब्रेट करने का। वाह। बिल्कुल, हर किस्म के नए नए तरीके निकल आ रहे हैं। तो चलिए, अब स्कोर है 96 for 5। Are we back yet? चलिए, 5 विकेट्स डाउन, 5 more to go। ओह, क्या बात है, विकेट कीपिंग देखिए गिरी भाई। ओह देखिए, विकेट कीपर अपनी नीज पे चला गए सुदीप ऑन दैट वेरी कॉन्फिडेंट अपील थी वो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट अपील थी। अब देखिए स्लो मोशन में भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की अपील थी वो, और क्या आप लोग की। ओह माय गॉड,
ये तो होना चाहिए। ये फिर से उठक बैठक बॉलर की तरफ से, और ये तो एकदम प्लम रहा एलबीडब्ल्यू। दूसरी गेंद पर ही फिर से एलबीडब्ल्यू। कुछ डीआरएस इतनी रहम दिली से बांटे गए हैं कि कोई भी बल्लेबाज मानने को तैयार नहीं कि वो आउट है। वो देखना चाह रहा है कि नो बॉल है या नहीं है, उस पे चांस ले रहे हैं। ऑल लाइन, पिचिंग इन लाइन, हिटिंग इन लाइन, और उसके बाद आप बहस कर रहे हैं अंपायर से। ये गलत ट्रेंड है गिरी भाई। क्यों? हमारे जमाने में बेहतर था कि अंपायर आप तभी आउट होते हैं अगर आउट है कि नहीं है इसका मतलब नहीं है, आप तभी आउट है जब अंपायर कहे कि आप आउट हो। मैं कुछ ऐसे भी मौके मैंने देखा कि भाई अंपायर की उंगली उठने से पेशतरी अपील ना होने से भी बल्लेबाज वॉकिंग कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज में तो काफी होता था। देखिए नॉर्मल स्पीड में भी क्या पूछ रहे हैं कि मिसिंग ऑफ, मिसिंग लेग, हिटिंग मिडल। ये इसी के आप देखिए फिर से दोबारा तो दो बार आउट होके जा रहे हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्यों ये किस लेवल के अंपायर्स हैं जो अंपायरिंग कर रहे हैं। चलिए देव ने 0 बनाया है 2 गेंदों में, 96 पे 6। अब क्या बात है। ये ऐसी शॉट में तो -1 दे देता मैं। कलकत्ता आपका फेवरेट रहा है। राउंड द स्टंप्स की जगह अगर ये ओवर द स्टंप्स आ जाए तो 1-2 विकेट और मिल जाएंगे इन्हें। नहीं बिल्कुल अच्छी गेंद और अच्छी लाइन और लेंथ है। देखिए जब आपका स्कोर और टोटल बहुत बढ़िया होता है और जब आपको पता है कि भाई ऑपोजिशन इस टोटल के करीब ना पहुंचे तो इनके कॉन्फिडेंस लेवल, हर एक के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बुलंद और ऊंचे हो जाते हैं। सैंडी में दम है, सैंडी अच्छे हाथ लगाते हैं। हैदराबाद में पिछले हफ्ते विकेट्स लगाए थे उन्होंने। तो चलिए 15 ओवर का खेल समाप्त, 98 पे 6 बंगाल टाइगर्स।